So atomic structure, doing lecture 11. Date is 6 June. And we are going to understand dual nature of matter, or you can say wave nature of electron. So there was a scientist, de Broglie, who said कि जैसे लाइट में डुअल नेचर होता है वैसे ही मूविंग मैटर में, मूविंग पार्टिकल, कोई भी मास, कोई भी ऐसा पार्टिकल जिसके पास मास है, दैट इज मैटर, अगर वो मूव कर रहा है तो उसमें भी वेव नेचर होगा. ओके, सो अकॉर्डिंग टू de Broglie, any moving particle will also show dual nature. Dual nature means particle as well as wave nature. तो ये बात जब उन्होंने बोली तो ऑब्वियसली कंफर्म कैसे हुई? So there was like some scientists try to do diffraction type of, that's a diffraction and interference type of phenomena with the electron rays, जो cathode rays निकली थी ना उनसे, ठीक है? So they got a result which is going to explain कि ये wave nature है ना, electron is also showing wave nature. That's how this confirmed. ठीक है? So according to de Broglie, any moving particle will also show dual nature, particle as well as wave nature, right? I missed wave, right? Wave nature. ठीक है भाई, ये बात समझ में आ रही है? Any problem? ठीक है? He said this, and what he also said कि what is the wavelength of matter wave is given by, so this is lambda de Broglie, so I am writing d. So lambda d is nothing but h by p, or you can say h by mv, because p is nothing but momentum mv. So where h is Planck's constant, and p is momentum. ठीक है? So this is the formula, HYP. Now how we are getting this formula? So this formula is derived from photon, है ना, or you can say light. So he's, है ना, so de Broglie said that since light can show
dual nature, light and matter can no. This formula is derived from photon or light, no, as matter is behaving similar to light, है ना, or similar to photon, moving matter. Let's say moving matter is behaving similar to photon. ठीक है, तो जैसे फोटोन में उन्होंने बोला कि उसमें पार्टिकल और वेव नेचर है, and then they are saying that similarly the particle is going to have electron is, or let's say any moving matter, you know, which is having mass, that is having particle as well as wave nature. फिर से सुनते हैं क्या कह रहा हूँ. जैसे लाइट है, लाइट का इंपॉर्टेंट पार्ट है फोटोन, है ना, स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन इज फोटोन. तो दे आर सेइंग कि जैसे फोटोन कैन शो और लाइट कैन शो wave nature as well as particle nature, similarly matter can show wave nature as well as particle nature. But be careful, matter waves are not electromagnetic rays, है ना, be careful, है ना. This is, you can write note, matter waves are not electromagnetic waves, hence cannot use है ना E equals to hc by lambda for matter waves. एक बात ये याद भी रखनी है, कई बार वेवलेंथ पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन की और पता चला आपने एनर्जी ऐसे ही निकाल दी, E equals to hc by lambda. तो अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी हैं. एक पढ़ा है हमने फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, दैट इज न्यू c by lambda, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, जो वो रोटेट कर रहा है जिस ऑर्बिट में, राइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन. तो इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, हाउ मेनी नंबर ऑफ लेट्स से साइकिल इट इज कंप्लीटिंग इन 1 सेकंड. फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन पूछा जा रहा है, देन दे आर आस्किंग, है ना, c by lambda. Similarly there is going to be another term, wavelength. If they are asking wavelength, then again c by lambda से wavelength आ रही है, right, nu equals to c by lambda for photon. But lambda over here for let's say particle, for electron, the lambda is going to be de Broglie lambda, which is nothing but h by p or h by mb. ठीक है. Another thing, in this formula, the m is going to be in, m is mass, m is going to be in kg, standard unit, है ना, जूल सेकंड लिखोगे तो मास किस में, ग्राम में डालोगे या केजी में, तो मास इन केजी. ठीक है, ये हो गया. नाउ लेट्स से वी आर गोइंग टू से, तो वेवलेंथ अलग अलग हो गई. वेवलेंथ में याद रखना है फोटोन और इलेक्ट्रॉन अलग अलग हैं, राइट. इलेक्ट्रॉन का टर्म ये जब भी आएगा तो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ यूज होगी. इसके बाद आती है एनर्जी. तो अगर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो वो कौन से ऑर्बिट में है उसके हिसाब से देखेंगे एनर्जी है, राइट. -13.6 z² by n², इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में अगर हम बात कर रहे हैं, राइट. तो एनर्जी इज गोइंग टू बी -13.6 z² by n². एंड फोटोन के टर्म्स में एनर्जी क्या हो जाएगी, hc by lambda. तो यू कैन सी कि दोनों के लिए टर्म सेम यूज होंगे, फॉर्मूला अलग अलग है, मिक्स मत कर देना. इतनी बात में किसी को कोई कंफ्यूजन समझ में आ रही है, ये दोनों बातें मैंने डिफरेंस क्रिएट किया है, राइट. कीप सेइंग यस और नो सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड बेटर. ठीक है. Now let's move.
ठीक है, ये हमने बता दिया है ना लैम्डा। फिर उसके बाद सो प्रूफ लेट्स से लेते हैं ये कैसे आया h by lambda. So proof, and the proof is we are going to do it for photons. So for photons, according to Einstein, तो ये जो वेव डुअल नेचर है ना, मतलब लाइट का डुअल नेचर, ये किसने दिया था? हु हैज गिवन दिस डुअल नेचर? ऑल दोस, तो मैक्स प्लैंक एंड आइंस्टाइन दोनों ने ये बात बताई थी। ठीक है, तो मैक्स प्लैंक एंड आइंस्टाइन दोनों ने कहा था, तो क्या क्या कहा था वो यहाँ समझ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, एनर्जी ऑफ लाइट है ना, और एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन इज mc², ठीक है, एज ए पार्टिकल। mc², where m is rest mass of photon। इसका मतलब क्या है कि किसी भी मैटर को, मतलब व्हाट आइंस्टाइन सेड, किसी भी कोई भी पार्टिकल है, उसका जो भी मास है, अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है तो सारा का सारा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सारा का सारा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रेस्ट मास का मतलब क्या है? जब वो मूव नहीं कर रहे हैं तो उस टाइम पे मास क्या था। एंड नाउ दिस the whole mass has converted into energy, so that energy is E equals to mc²। ठीक है, according to Max Planck, energy of photon is hc by lambda, which is nothing but as a wave. So hence energy of photon can be written as, like, both we are going to compare. So E equals to mc², which is nothing but hc by lambda. So c से c कट गया, and the lambda is h by mc, and that is h by p. Mc is nothing but momentum. So this h by p is, let's say, first है ना, डिब्रॉय सेड कि देखो ये लैम्डा, ये जो बात है ये किसके लिए ट्रू है? फोटोन के लिए ट्रू है। तो ये पार्टिकल के लिए भी, किसी भी मैटर के लिए भी ट्रू होगी, मूविंग मैटर के लिए भी ट्रू होगी, है ना, क्योंकि वो भी डुअल नेचर शो कर रहा है। सो दैट्स हाउ वी आर गेटिंग लैम्डा वैल्यू इज नथिंग बट, है ना। सो this let's say formula is also valid for matter waves, as matter waves are showing similar behavior as photon। ठीक है, तो यहां से ये फॉर्मूला ही हैज डिराइव्ड कि लैम्डा इक्वल्स टू h by p। ना कुछ और फॉर्म इसकी समझ लेते हैं, नोट। एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम? चलें आगे। कोई डाउट है यहाँ तक? एक मिनट, आई एम जूमिंग आउट। एनी डाउट तो कोई पूछ लो अपने डाउट। एनीवन? कोई डाउट नहीं है, सबको सब समझ में आ रहा है, मस्त।
ठीक है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं, जस्ट टेकिंग ए पोल, जिनको नींद आती है क्लास में? रेज योर हैंड। पूछा था क्या ये लास्ट क्लास में मैंने? हाँ, ओके ओके। आज आज कम है, नहीं, आज थोड़ा परसेंटेज कम हो गया ना। हाँ, ठीक है, चलो, सुना नहीं, पूछते रहना। जो लोग लिख रहे हैं ना उनको नहीं नींद आएगी, जो नहीं लिख रहे हैं उनको नींद आती रहेगी, क्योंकि थ्योरी है ना। क्वेश्चन तो बहुत कम आते हैं एग्जाम्पल्स के, आपको बैठ के सॉल्व करना है तो जग जाएंगे। इसलिए मैं बीच बीच में पूछता रहा, डाउट बताओ, डाउट बताओ, कोई 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 डाउट है तो पूछते रहो। ठीक है, चलो। अब वी आर गोइंग टू सी सम अदर फॉर्मूला। मतलब ये जो एच वाई एम वी है ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, इसको थोड़ा और कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अदर लेट्स से formulas for De Broglie wavelength. So lambda is nothing but h by p, or you can say h by mv, and you can write kinetic energy is nothing but half mv square. So if I am going to multiply 2 over here, then 2 kinetic energy is nothing but mv square. If I am going to multiply m over here, then 2m ke is nothing but m square v square, which is nothing but p squared. So p is nothing but root 2 m ke. So this, there is another formula, h by root 2 m ke. ठीक है, this is first. Another is, let's say, kinetic energy in electric field. So if electron is accelerated from rest, from rest, then what will happen? Change in kinetic energy is nothing but change in potential energy. कल हमने बताया था ये आपको, कहाँ पे बताया था? जब स्टॉपिंग पोटेंशियल बता रहे थे, राइट? तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? Q इंटू वी, वेयर V इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगा? दिस Q इंटू वी। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगा? बिकॉज वी हैव एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, this value is 0, then kinetic energy final is nothing but Q into V. So hence, है ना, we can say lambda का एक और फॉर्मूला हो सकता है, that is h by root 2m Q into V. क्लियर है ये बात? So two more variation, right? ना ऑब्वियस सी बात है, इसमें h m ये सब कांस्टेंट वैल्यूज हैं, राइट? तो हम क्या करेंगे,
इलेक्ट्रॉन के लिए इन वैल्यूज को लिख के एक शॉर्ट फॉर्मूला बना लेंगे, है ना। तो वी विल राइट फॉर इलेक्ट्रॉन्स, फॉर इलेक्ट्रॉन ठीक है। फॉर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, lambda de Broglie is going to be h by root 2m mass of electron, this m into चार्ज कितना हो जाएगा E into V, ये फॉर्मूला बन जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। नाउ वी कैन राइट, वी आर गोइंग टू राइट द वैल्यूज, तो ये फॉर्मूला बनता है 150 by V, this the value is going to come is like this, 150 by V in angstrom or 12.3 divided by root V in angstrom. This is the formula for electron. So let's understand how we are going to apply this formula. Example, de Broglie wavelength of, or de Broglie wavelength of electron in third orbit of hydrogen atom, let's say ये पूछा गया है, de Broglie wavelength of electron in third orbit of hydrogen atom. So how we are going to solve it? So first we have to check थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन is nothing but minus of total energy of electron, which is nothing but 1.51 electron volt, है ना, minus 13.6 डिवाइड बाई n स्क्वायर, मतलब 9 करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.51 electron volt. Now this kinetic energy is, the kinetic energy of electron is equals to 1.51 electron volt, and this is equals to, if electron is accelerated by 1.51 volt, potential difference from rest, है ना, ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ये उसके बराबर हो जाएगी अगर 1.51 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम रेस्ट, है ना, तो इतनी वैल्यू आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी की 1.51 वोल्ट। तो इससे आपको पोटेंशियल डिफरेंस की ये जो वैल्यू है ये पता चल गई, ये कितनी आ गई 1.51। जब भी आप ऐसे वाले क्वेश्चंस करोगे, इसमें क्या करोगे, काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन हटा दोगे, दैट इज गोइंग टू बी पोटेंशियल डिफरेंस, बस अप्लाई ओवर हियर। तो ये आसान हो गया, कितना आसान। तो लैम्डा डी ब्रोगली क्या हो गया 150 डिवाइड बाय 1.51, सो अप्रोक्सीमेटली दिस इज 10 एंगस्ट्रॉम। ये 100 बार जाएगा, 100 का रूट क्या हो जाएगा 10 एंगस्ट्रॉम। एनी प्रॉब्लम, इतना समझ में आ गया? अगेन यस नो विल बी फाइन। कोई कंफ्यूजन इसमें, क्या किया हमने, राइट? काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट कि कोई भी, हाँ जिनको कंफ्यूजन है पूछो, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अभी मैंने बताया था कि किसी पोटेंशियल डिफरेंस में जिस पोटेंशियल डिफरेंस में से आप एक्सेलरेट करते हो उसके बराबर हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, राइट, है ना। जैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल और एक्साइटेशन पोटेंशियल ये सब बताया था ना, तो उसमें ये एक पोटेंशियल डिफरेंस वाला टर्म बताया था, ये सुन लो। Excuse me, sir. हाँ Sir, can I ask my doubt? Sir, I didn't got the first statement you wrote in this question. Kinetic energy of electron is equal to minus of total energy of electron. तो ऑर्बिट में क्या होती है एनर्जी, और ये रिलेशन तो बोर मॉडल से लगेगा ना हाइड्रोजन एटम के लिए। ओके सर। व्हाट वाज द बोर मॉडल? तो उसमें काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर थी, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी के बराबर थी, राइट? या है ना, एक ऐसे क्वेश्चंस किए हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी अगर टोटल एनर्जी बताए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो ये हाइड्रोजन एटम थर्ड ऑर्बिट के लिए वी हैव कैलकुलेटेड व्हाट इज गोइंग टू बी
एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और वो क्या होगी, उसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर ये 1.51 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेलरेट कराएंगे तो उसके बराबर होगी, विच वी हैव प्रूव्ड हियर ओवर हियर, है ना। Yes, इलेक्ट्रॉन sir. के लिए ये Q क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, एंड दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस B। Okay, sir. Got it. Thank you, sir. ठीक है। सो आकाश, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में था, यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं ना। इलेक्ट्रॉन स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था, इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहे हैं वो रिसीव ना हो पाए, राइट, दैट्स व्हाई द करंट इज नॉट गोइंग टू बी, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और करंट पूरा घूमेगा नहीं, राइट। सो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात नहीं आ रही, यहाँ पे बस वो कॉन्सेप्ट की बात आ रही है, राइट। इफ यू आर गोइंग टू एक्सेलरेट एनी इलेक्ट्रॉन तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। वी हैव रिटन व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, Q into V। दिस इज नथिंग बट, है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे लिख लिया है आपको, राइट। अब चलते हैं आगे। ठीक है, इसी में अगर मान लो कोई पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन के साथ साथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ लेट्स से फोटोन प्रोटॉन पूछ ले, राइट, somebody is going to ask, let's say example, पहले ये समझते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, ऑफ इलेक्ट्रॉन if it is accelerated by 100 volt and, है ना, A, है ना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ या लैम्डा डी of electron if it is decelerated by 36 volt after acceleration। ठीक है, तो 100 वोल्ट का जो भी एक्सेलरेशन है उसके बाद 36 वोल्ट से डी एक्सेलरेट की गई, तब फिर उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी। ठीक है, तो अब यहाँ समझ लेते हैं, दोनों ही सॉल्यूशन मैं ही बता रहा हूँ। तो लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या हो जाएगा, दिस इज 150 बाई V, or you can say 12.3 divided by root V। So we are going to check, can we take the root of potential difference here? Yes, we can take. So that is 12.3 divided by root V is nothing but 10 angstrom. So this is 1.23 angstrom। तो जब ये 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया गया है, ठीक है, तब इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी आएगी, 1.23 एंगस्ट्रॉम। अब 36 वोल्ट से डीएसेलरेट किया गया है, इसका मतलब क्या हुआ, बी पार्ट। अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज नथिंग बट E into 36 volt, that is negative, deaccelerate करा रहे हैं, right, so we are going to write negative value over here। now kinetic energy initial क्या हो गई, after acceleration this is going to be 100 electron volt। so kinetic energy final क्या हो जाएगी, sorry यहाँ पे final लिखते हैं, so final is going to be 100 electron volt minus 36 electron volt, which is 64 electron volt। और you can directly see from here कि भाई पहले 100 volt से हमने एक्सेलरेट किया है, फिर 36 से हमने डीएसेलरेट किया है, तो अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई आपकी, 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लैम्डा डी क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट 150 बाई वी, विच इज 12.3 डिवाइड बाई रूट वी। सो वी आर गोइंग टू टेक 12.3 डिवाइड बाई 8, just solve it, 1.54 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा लगभग लगभग। ठीक है, समझ में आया क्या किया हमने, है ना। तो ऐसे कुछ भी कोई भी क्वेश्चन कहेंगे कि मान लो हमने 100 के बाद फिर से फर्दर let's say we have accelerated by 125 इलेक्ट्रॉन 125 वोल्ट, तो क्या हो जाएगा, फिर लैम्डा में हम रूट वी लिखेंगे तो वी की वैल्यू निकाल लेंगे। समझ में आ रही है बात, एनी कंफ्यूजन।
तो अगर मान लो इसी में पूछा गया कि प्रोटॉन का बताओ क्या होगा, अगर मान लो प्रोटॉन क्या होता है, कोई बताएगा व्हाट इज प्रोटॉन? हाइड्रोजन न्यूक्लियस, राइट? हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल दो, हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज गोइंग टू बी प्रोटॉन. तो लेट्स से de Broglie wavelength of proton if it is proton not photon, है ना, proton, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, proton if it is accelerated by 100 volt. ठीक है, अगर मान लो ये क्वेश्चन आता तो हम लिखते लैम्डा डी ब्रॉगली इज नथिंग बट h by, अब ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? नहीं, राइट, बिकॉज दिस इज फॉर प्रोटॉन, ये फॉर्मूला ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन है. तो हम फिर से वहीं जाएंगे, h by अंडर रूट 2m/QV. So we will write H is nothing but H 2m. So m of proton is nothing but we can write अभी m of proton Q into V. Q की जगह लिख सकते हैं E and V क्योंकि charge of proton is E. So which is nothing but H by 2 mp क्या हो सकता है? 1837 times mass of electron into E into V, है ना, mass of electron, ये इसलिए जस्ट छोटा सा E है, तो समझना मत कि ये फिर से चार्ज लिखा है, राइट, सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है छोटा सा, ऐसा हो जाएगा. अब देखो इस क्वेश्चन को, इसको ध्यान से देखोगे तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये फॉर्मूला हमने निकाला हुआ है, h by 2me into E into V is nothing but root 150 by V. So lambda d क्या हो जाएगा? 150 by V into 1837 root. If you are going to take out the root, then this value is approximately 43, or you can take the root, then 42.9 or something आएगा, ये एक बार देख लेते हैं वैल्यू. ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 42.9 आएगा, तो ये 12.3 रूट वी इंटू 42.9. इसको सॉल्व कर लेंगे. तो ये आ जाएगा 0.286 डिवाइड बाई रूट वी एंगस्ट्रॉम. समझ में आया कैसे निकाला? समझ में आ गया? अब मान लो अल्फा पार्टिकल कोई पूछे तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल if it is accelerated by 100 volt. बताओ भाई कितना होगा, कैलकुलेट करके बताओ. एनीवन, इसको पता है क्या करना है? सही, यस नो? अरे भाई अल्फा पार्टिकल का मास क्या होता है? 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन, तो जैसे हमने यहाँ लिखा था. और चार्ज क्या होता है? 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन.
तो बस यहाँ पे डालना है, यहाँ पे 4 and 2, 8 का फैक्टर और बढ़ जाएगा प्रोटॉन में, दैट इज 2√2। ठीक है, बस तो बस लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा, h/√2m3b। So this is nothing but h/√2 mass of alpha into 2e, charge of alpha particle into v। m alpha क्या हो जाएगा, h/रूट है ना 2 into 4 times mass of proton into 2 times charge of let's say electron into v। So what we can see is this is nothing but है ना lambda d of proton डिवाइड बाई, यहाँ पे ये 4 और 2 आ गया तो √8। ये फॉर्मूला हमने निकाला हुआ है ऑलरेडी। सो लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा, या फिर मैं यहाँ लैम्डा अल्फा लिख ले रहा हूँ क्योंकि जस्ट टू मेक इट सिंपल, लैम्डा अल्फा is nothing but lambda proton divided by √8, or you can say lambda electron divided by √8 into 1837। ठीक है, 1837 ही तो था ये रूट में, which is nothing but you can write by any values। So I am just going to put this value, so 0.286 divided by 2√2 is 2.8, that's if 1.414 ना, तो 1.283 है ना √v, which is nothing but अगर इसको देखेंगे approximately we can say 0.1 divided by √v approximately एंगस्ट्रॉम। बस हो गया आंसर। ठीक है, अल्फा प्रोटॉन किसी को भी निकाल सकते हैं। तो अगर मान लो मैंने बोला कि लेट्स से कैल्शियम का एटम है, राइट है ना, इफ आई सेड कैल्शियम एटम, और उसको मैंने काइनेटिक एनर्जी दे दी है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी दे रखी है ना 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो हम निकाल लेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ, है ना। कोई भी एटम होगा तो वी कैन कन्वर्ट अकॉर्डिंग टू लेट्स से मास ऑफ प्रोटॉन, तो हमें पता ही है, तो 40 एमयू के लिए निकाल लेंगे। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे देखो क्यूबी वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि एटम तो न्यूट्रल होता है ना, तो चार्ज नहीं आएगा, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी लिखनी पड़ेगी। इसीलिए इस क्वेश्चन में मैंने ये नहीं बोला कि 100 वोल्ट से एक्सेलरेट कर रहे हैं, आई सेड काइनेटिक एनर्जी इज 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो विल पुट द वैल्यू अकॉर्डिंगली। एनी डाउट टिल हियर? नो डाउट, ओके। किसी को है तो भाई पूछ लो, रेज योर हैंड। ठीक है, तो अब ये जो डी ब्रॉगली थे, इन्होंने हाउ ही हैज एक्सप्लेन बोर मॉडल, सो एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर मॉडल और बोर थ्योरी हाइपोथेसिस बाय डी ब्रॉगली। नेक्स्ट है नोट, explanation of Bohr model by de Broglie। So he said कि what is going to happen, what is the relation between we are saying ना according to Bohr model the angular momentum is going to be integral multiple of h/2 pi, so mvr is nothing but nh/2 pi, ये हमने लिखा है। तो बोर could not explain ये कहाँ से आया, he said कि ये वाला फैक्टर है, इससे सारे रिजल्ट सही आ रहे हैं, so that's why it is going to happen। But de Broglie explained, de Broglie said कि देखो जो ये इलेक्ट्रॉन है इसकी एक वेव होगी, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है लेट्स से इलेक्ट्रॉन इज हाइपोथेटिकली वी आर अज्यूमिंग कि वो ऐसे सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो उससे एक वेव भी एसोसिएटेड होगी, है ना, ऐसे करके ऐसे है ना, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो साइन वेव है, जस्ट टू लाइक गेट द सिंपलिसिटी,
है ना, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसके साथ साथ एक वेव भी मूव कर रही होगी, ऐसा नो, ठीक है ना। ना ये बात समझ में आ रही है, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और ये वेव है, मैटर वेव। ठीक है, अब इन्होंने ये क्या किया है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी और नॉन स्टेशनरी ऑर्बिट को समझाया इन्होंने। तो एक टर्म समझते हैं पहले, फेज डिफरेंस, है ना, व्हाट इज फेज डिफरेंस। चलो ये थोड़ी देर में समझते हैं, पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ, है ना, स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब एनर्जी इज कांस्टेंट and where phase difference of electron wave is zero। क्या है समझते हैं। तो जब इन्होंने कहा कि जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ऐसे, तो यहाँ पे क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन लेट से मूव करना स्टार्ट हुआ, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ मैं, जैसे ऐसे कुछ मूव कर रहा है, ये इसकी वेव है, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो ऐसे ये वेव आ रही है, सो वी कैन सी क्रेस्ट ट्रफ्स ऐसे करके, राइट। इट इज नथिंग बट कि अगर मान लो ऐसे कुछ हो और इस डोरी से अगर मैं एक सर्कल बना दूं तो ऐसा कुछ दिखेगा, राइट, ऐसा मूव कर रही है, राइट वेव। तो ऐसे अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो उसकी वेव ऐसे चल रही है, अगर ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होगा तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। सो ही सेड कि देखो भाई, फेज डिफरेंस का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है, राइट, उसके साथ जो वेव मूव कर रही है, तो ये वेव जो है ना सेम लेट्स से पाथ को रिपीट कर रही है ना, सेम पाथ को रिपीट कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन एक चक्कर के बाद दोबारा से यहाँ पे आया, राइट, है ना, दोबारा से स्टार्ट किया, तो लेट्स से यहाँ से स्टार्ट किया, लेट्स से यहाँ से, तो ये पूरा चक्कर जब लगा के आया तो ये जो वेव है वो यहाँ पे जाके फिर से मिल गई ना, जब ये इलेक्ट्रॉन लेट्स से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ऐसे वेव चल रही है उसके साथ साथ। तो जब ये पूरा चक्कर करके कंप्लीट किया इसने यहाँ पे, व्हेन इट इज कंप्लीट, इट हैज कंप्लीटेड वन रिवॉल्यूशन, तो फिर वेव कहाँ से स्टार्ट हो गई, सेम पॉइंट से स्टार्ट हुई। सो देयर इज नो फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस का मतलब होता है टाइम लैग, और यू कैन से पोजीशन में डिफरेंस, राइट। सो व्हाट आई एम से ट्राइंग टू से, समझाता हूँ मैं, कि मान लो एक ऐसे वेव चल रही है, फेज डिफरेंस को ऐसे समझो, इसको बोलते हैं साइन वेव, है ना। इसका सिंपली लेट्स से मैं बोलूँ तो इसका फॉर्मूला होगा ए साइन थीटा, वेयर थीटा इज इन पाई, लेट्स से पाई बाई 2, पाई बाई 4 ऐसा करके निकालेंगे, है ना, रेडियंस में, बट डिग्री में भी लिख सकते हो, वरना ये y इक्वल टू ए साइन थीटा का ग्राफ है, वेयर a इज एम्पलीट्यूड। तो अगर थीटा इज जीरो है, राइट, अगर थीटा जीरो है तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा जीरो वैल्यू हो जाएगी, तो जीरो हो गया। पाई बाई 2 है ना, तो ये 1 हो जाएगा। फिर 180 है तो जीरो हो जाएगा। फिर पाई बाई 2 है मतलब, है ना, तो दिस इज गोइंग टू बी 3 पाई बाई 2, फिर -1 हो जाएगा, फिर ये 2 पाई ऐसे जीरो हो जाएगा ऐसे। तो ये वेव की इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब मान लो साइमल्टेनियसली देयर इज अनदर वेव, if there is another wave, ये सब थोड़ा थोड़ा आपको ना फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा आगे। आई एम जस्ट ट्राइंग टू लेट्स से एक्सप्लेन इन सच अ वे कि आपको जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझ में आ जाए। सो लेट्स से जहाँ पे ये है ना जीरो है, वहां पे ये वाली जो वेव है वो मैक्सिमम है, लेट्स से ऐसा कुछ बन रही है, राइट।
काइंड ऑफ, ठीक है। और जहां पे ये मैक्सिमम है वहां पे ये 0 हो रहा है, लेट्स से। अगर इसका इक्वेशन लिखना पड़ेगा तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा y इक्वल्स टू a साइन थीटा प्लस पाई बाई 2। तो यहाँ थीटा 0 था तो पाई बाई 2 के कारण 90 आ गया, और यहाँ 90 था तो यहाँ पे 180 हो गया, ठीक है। तो ये जो पाई बाई 2 है इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। मतलब इन दोनों वेव्स में व्हाट इज द फेज डिफरेंस, पाई बाई 2। मतलब जब ये 0 है तो यहाँ पे, है ना, जब ये 0 है तब यहाँ पे ये मैक्सिमम आ रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन वेव है इट इज रिपीटिंग द सेम पाथ। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस क्या हो गया, 0। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन वेव थी पहले, जो भी इलेक्ट्रॉन वेव का इक्वेशन था वही सेम रहेगी हर बार, हर, है ना। तो देयर इज नो टाइम डिफरेंस और फेज डिफरेंस, राइट, ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। तो फिर क्या होगा, एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, है ना। एनर्जी जो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। वी आर रिलेटिंग विद दिस, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। एनीवन एनी हैविंग एनी प्रॉब्लम? फेज डिफरेंस समझ में आ गया। फेज डिफरेंस क्या है, राइट। सो यू कैन से टाइम लैग बोल सकते हो कि ये थोड़ा पीछे है, राइट, या ये थोड़ा आगे है, टाइम लैग बोल सकते हो, या थीटा की टर्म्स में बोल सकते हो, ठीक है। ये फेज डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन वेव सेम पाथ को रिपीट कर रही है, देन वी आर सेइंग दिस इज स्टेशनरी ऑर्बिट। ये फेज डिफरेंस समझाया मैंने। तो यहाँ पे क्या बोला गया, फॉर स्टेशनरी ऑर्बिट दैट वेव इज गोइंग टू फॉर्म कंप्लीट वेव्स। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन वेव है ना, मैटर वेव और इलेक्ट्रॉन वेव will form complete waves, complete or whole number of waves, right, मतलब integer number of waves, so complete waves in one revolution, ठीक है। तो बोला गया इसको, राइट, व्हाट वी आर गोइंग टू से कि 2 पाई आर एन, है ना, रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस चली गई, 2 पाई आर एन इज नथिंग बट एन लैम्डा, इज नथिंग बट एन लैम्डा। लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होगा ये, है ना, कंप्लीट वेव बना रहा है। तो अगर जैसे ये 3 बना रहा था तो ये हो जाएगा 1, फिर यहाँ से 2, और ये पूरा 3 बना रहा है तो फिर यहाँ से 3, है ना। 3 ट्रफ एंड क्रस्ट मिल रहे हैं, राइट। तो ये क्या हो गया, एक तरह से 3 टाइम्स वेवलेंथ चल गया, राइट। हियर n इज नथिंग बट n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। Where n is nothing but number of orbit, or you can say number of waves completed. नंबर ऑफ ऑर्बिट किसने दिया, बोर ने बोला इसको। एंड नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड ये किसने दिया, डी ब्रॉगली ने, मतलब डी ब्रॉय, ठीक है। तो वेयर एन इज नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। ये वाला एन जो आ रहा है 2 पाई आर एन और ये एन, ये दोनों सेम ही है। तो अकॉर्डिंग टू बोर जो बात यहाँ पे बोली गई, है ना, बोर ने बोला इसको कि नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा एन एच बाई 2 पाई में, है ना। एंड व्हाट ही सेड इज, डी ब्रॉगली ने क्या बोला कि ये क्या होगा, नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड होगा। ये बात अच्छा कैसे आई ये भी समझ लेते हैं। तो 2 पाई आर एन इक्वल्स टू एन एच एन लेमडा। अब क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, 2 पाई आर एन इज नथिंग बट, यहाँ पे एन लेमडा की जगह लिख देते हैं एच बाई पी। एच बाई पी इज नथिंग बट एच बाई एम वी। सो एम वी आर एन इज नथिंग बट एन एच बाई 2 पाई। समझ में आया, ठीक है। फिर से समझ लेते हैं क्या कहा। ये दोनों बातें सेम है, ये बातें दोनों सेम क्यों है, क्योंकि देखो ये रिलेशन किसने दिया, डी ब्रॉगली ने, है ना। ही सेड कि n जो है वो क्या होगा, नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड। अब यार क्या लिखा, 2 पाई आर एन इज नथिंग बट n, लैम्डा की वैल्यू लिख दी h बाई एम वी। तो ये इधर चला गया, तो एम वी आर एन क्या हो जाएगा, दैट इज
एंगुलर मोमेंटम इन nth ऑर्बिट विच इज नथिंग बट nh by 2 pi. तो यहां से n क्या निकल के आया? अकॉर्डिंग टू दिस इज बोर रिलेशन. तो यहाँ पे n क्या था? वो नंबर ऑफ ऑर्बिट था. तो ये याद रखना है. ठीक है. तो कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ सेकंड ऑर्बिट में कितनी वेव्स कंप्लीट होंगी? तो सेकंड 2 होंगी. हाउ मेनी नंबर ऑफ वेव्स आर गोइंग टू कंप्लीट? 2. थर्ड ऑर्बिट में 3. वन ऑर्बिट में 1. ठीक है. ऐसे समझ में आया? एनी कंफ्यूजन? सो व्हाट आई हैव डन इज, मैंने पहले आपको समझाया कि इसमें फेज डिफरेंस कुछ नहीं होगा. फेज डिफरेंस कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है? कंप्लीट वेव्स बनेंगी. मतलब अगेन जब इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो फिर वो सेम पाथ पे दोबारा से ये वेव्स बनना चालू होंगी, राइट? सो दैट मीन्स कंप्लीट वेव्स हो गई. देन वी हैव सेड कि जो ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉन वेव होंगी तो वन रिवॉल्यूशन में कंप्लीट नंबर ऑफ वेव्स बन रही है. देन वी हैव रिटन 2 pi r n इक्वल्स टू n लैम्डा. ये तो डी ब्रोगली ने बोला. और यहाँ पे n क्या है? यहाँ पे नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड है. अब ये 2 pi r n इक्वल्स टू लैम्डा की वैल्यू h by mv लिख दिया हमने. तो फिर क्या हो जाएगा? 2 pi r n इक्वल्स टू nh by mv. ठीक है. Now what you can do is you can take this mv this side. तो ये हो जाएगा mv rn is nothing but nh by 2 pi. ठीक है. And that is nothing but Bohr relation. है ना? एंगुलर मोमेंटम इज nh by 2 pi. कैसे आ रहा है ये समझ ले. समझ में आ गया? अब समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन स्टेशनरी स्टेट. कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन स्टेशनरी ऑर्बिट और यू कैन से स्टेट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है नॉन स्टेशनरी में? है ना? एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट एंड फेज डिफरेंस इज प्रेजेंट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंप्लीट वेव्स विल नॉट फॉर्म. है ना? कंप्लीट वेव्स विल नॉट फॉर्म. तो हो क्या रहा है यहाँ पे? जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है. तो अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो फिर क्या हुआ? लेट्स से वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम हियर. लेट्स से वी हैव फिनिश्ड हियर. है ना? ये इस बराबर नहीं हुआ, राइट? लेट्स से थोड़ा सा लेट्स से दिस इज हैज फिनिश्ड ओवर हियर. है ना? ये स्टार्टेड यहाँ से हुआ था लेकिन फिनिश यहाँ हुआ. लेट्स से देन व्हाट विल हैपन? इट इज गोइंग टू मेक लाइक अगेन. है ना? ये ऐसे फिर ऐसे वेव्स बनेंगी अलग अलग. कैन यू इमेजिन लाइक दिस? है ना? So path is not going to be same. So at any moment there is always going to be phase difference. और phase difference होगा then energy is not going to be constant. Understood? इतनी बात clear है? चलो अब चलते हैं थोड़ा और आगे. इसमें और एक बात याद रख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू de Broglie, है ना? दिस इज अनदर पॉइंट. नोट करके लिख लेना. अकॉर्डिंग टू de Broglie, है ना? वेव नेचर is significant for microscopic particle. Microscopic means small particle like electron, proton, है ना? Electron, proton, atom, alpha particle, etc. But it is insignificant
for macroscopic particles, है ना, large particles like ball, buzz, train, anything, right, etc. planet, कुछ भी मूविंग है ना, etc. तो ये बड़े पार्टिकल्स के लिए जो वेव नेचर आएगा वो इतना छोटा होता है कि वी कैन इग्नोर इट. ठीक है, समझते कैसे? फॉर एग्जाम्पल, find de Broglie wavelength of a moving ball having mass, or we can say mass in bracket, mass equals to 100 gram with speed 10 meter per second. ठीक है, find de Broglie wavelength of a moving ball, mass is 100 gram and speed is 10 meter per second. So what we are going to do, we'll say lambda de Broglie wavelength is nothing but h by mv. मास हमें किस में लिखना है, हमेशा किलोग्राम में. तो h we are going to write m we are going to write 0.1 and v we are going to write 10. So this is h by 1, which is nothing but 6.63 into 10 to the minus 34 मीटर. स्टैंडर्ड यूनिट है तो यहाँ मीटर आ जाएगा. सो यू कैन सी दिस इज वेरी स्मॉल. दिस wavelength is very small. ठीक है, तो इस जो भी मूविंग वॉल होगी उससे जो एसोसिएटेड वेवलेंथ होगी वो बहुत ज्यादा छोटी होगी. एंड दैट इज सो स्मॉल कि अगर हम एटम के साइज से भी कंपेयर करें देन इट इज 10 to the minus 24 times smaller than the size of atom. So you can see how small it is, right? क्योंकि एटम का साइज कितना होता है, 10 to the minus 10 meter. So it's very small and hence we can neglect. ठीक है, we neglect this. Or we can say for larger particle only, है ना, for larger particle wave nature can be neglected. Yes. हाँ, तो we are that's how we are comparing ना, कि एटम से भी बहुत छोटी वेव बन रही है, राइट? इतनी छोटी है कि इसको हम बस इग्नोर ही कर सकते हैं. अच्छा, ये बात याद रखनी कि मैटर वेव की जो वेवलेंथ है उसको हम एनर्जी से रिलेट नहीं कर सकते. मैंने पहले बोला एच सी वाई लेमडा नहीं लगा देना यहाँ पे, फिर आप बोलोगे सर इतनी छोटी वेवलेंथ है तो एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी. नहीं, ठीक है, वो फोटोन के लिए है केवल. ये वाला जो फॉर्मूला है एच सी वाई लेमडा, यहाँ मत लगा देना. लिखो भाई, लिखो जल्दी.
डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर फोटोन क्यों होगा भाई? डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसके लिए है? मैटर वेव्स के लिए। फोटोन मैटर वेव्स थोड़ी ना है, फोटोन। इसीलिए मैंने बोला फोटोन और प्रोटोन में ध्यान रखना। प्रोटोन लिखा है आपने फोटोन लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा उल्टा। एनीवे लेट्स से अनदर एग्जांपल। फाइंड lambda d for electron moving with speed of 3 into 10 to power 6 meter per second, let's say। ठीक है, मान लो ये दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड से मूव कर रहा है, तो we will say lambda d is nothing but h by mv। so h is h we can write that is 6.63 into 10 to power minus 34, m mass of electron that is in kg, so 9.1 into 10 to power minus 31, and v is nothing but 3 into 10 to power 6. So if you are going to solve, this will come 6.63 into 10 to power minus 34, and this is going to come as 9.1, so 27.3, that's it, 27.3 into 10 to power minus 25. So we are going to, let's say इसको ऊपर लेके जाएंगे तो lambda d कितना हो जाएगा? 6.63 into 10 to power minus 9 divided by 27.3, or you can say 66.3 into 10 to power minus 10 divided by 27.3. if you are going to cut it, ये कितना हो जाएगा? 54, फिर 10 के आसपास 12 के आसपास बचेगा, तो 4 के टाइम्स है ना, तो ये जाएगा 2.4 लेट्स से अप्रोक्सीमेटली एंगस्ट्रॉम। अप्रोक्सीमेट आंसर दे रखा है, ठीक है मैंने ये। तो 2.4 एंगस्ट्रॉम ये आ गई इसकी वेवलेंथ, किसकी? इलेक्ट्रॉन की। अब आप ये समझ सकते हो इलेक्ट्रॉन किस में रहता है? एटम में रहता है। एटम का साइज कुछ 10 टू पावर -10 मीटर है, और ये भी एंगस्ट्रॉम में भी क्या है? 10 टू पावर -10 है। तो इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो उसके साइज के कंपैरिजन में आ रही है, राइट? जहां पे वो रह रहा है, जहां पे वो मोमेंटम कर रहा है, उसके कंपैरिजन में आ रही है। तो वी आर गोइंग टू से यस, वी विल एक्सेप्ट इट, दिस वैल्यू। सही है या नहीं? ठीक है, this wavelength is in comparison with size of atom। remember एटम में जब ये घूम रहा है तो एक जो रिवॉल्यूशन ले रहा है, राइट, एक जो ये रिवॉल्यूशन ले रहा है ना, उसमें n लैम्डा बन रहे हैं, राइट, रिवॉल्यूशन। तो यू कैन अंडरस्टैंड ना, ये कंपेरेबल होना चाहिए ना, सही है ना, तभी तो बात सही बनेगी। सो दैट्स एवरीथिंग इज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन कि इलेक्ट्रॉन के अंदर पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर दोनों होती है, ठीक है, कंपेयर द साइज ऑफ एटम, hence electron shows both, or hence we can say hence for electrons wave nature is significant। yes, now I will take down, yes Mahirshi। सर तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड 3 into 10⁶ मीटर पर सेकेंड ही होता है। अप्रोक्सीमेटली हमने यहाँ पे ले लिया ताकि कैलकुलेशन हो। इलेक्ट्रॉन की स्पीड 2.18 into 10⁶ आई थी ना बोर के हिसाब से, है ना, तो ये 10⁶ है, 10⁸ नहीं है। हाँ वही 10⁶ ही बोला। हाँ ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली इसी रेंज में रहती है, 2.18 into 10⁶ into Z/N, राइट। यस, उसके रेंज में आप लगा सकते हैं। ये सिंपलिसिटी के लिए लिया है ताकि आप आसानी से, है ना, यहाँ 2 भी लिख सकते थे। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे हमारा ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीक में हम पढ़ेंगे थोड़ा क्वांटम फिजिक्स, थोड़ा सा क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड एडवांस मैथमेटिक्स, तो हम उनके डेरिवेशन नहीं पढ़ेंगे, राइट। क्या पढ़ेंगे? रिजल्ट पढ़ेंगे कि भाई इन्होंने ये बात कही तो ये क्या बात थी, ठीक है।
कैसे आई ये नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि दैट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ एडवांस मैथमेटिक्स, ठीक है, जो कि मुझे भी जरूरत नहीं है करने की। एक आध जगह पे जैसे एक आध डेरिवेशन में बता दूंगा, बट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये सब क्वांटम फिजिक्स का पार्ट है। क्या है ये क्वांटम फिजिक्स? तो क्वांटम फिजिक्स सेज कि देयर इज नो सर्टेनिटी, दैट्स इट, इफ यू आर गोइंग टू, एवरीथिंग इज रिलेटेड विद प्रोबेबिलिटी। एटॉमिक लेवल पे जाओगे तो प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बात करते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू से सर्टेनली कि ये ऐसा ही होगा। जैसे अभी मान लो आप क्लासिकल लॉज ऑफ फिजिक्स पढ़ रहे हो तो उसमें पूरी सर्टेनिटी है। अगर आपने प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट हो गया, पढ़ाया सर ने भी प्रोजेक्टाइल मोशन? नो, ठीक है, नॉट येट। मान लो लीनियर मोशन स्टार्ट हुआ है, बॉल मूव कर रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, कहीं पे भी लीनियर मोशन हो भी नहीं, बस वेक्टर्स हुआ है। अच्छा, एनीवे आपने ये तो पढ़ा हुआ है ना, वो क्या कहते हैं, स्पीड डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, राइट? हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि टाइम, अगर मैं आपको स्पीड बता दूं तो आप एग्जैक्ट पोजीशन बता दोगे, 2 सेकंड में ये यहाँ होगा, 3 सेकंड में यहाँ होगा, 5 सेकंड में यहाँ होगा, जो भी है। आई एम गोइंग टू से कि ये इसी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो आप एग्जैक्ट पोजीशन एवरीथिंग विद द सर्टेनिटी यू कैन से, बिकॉज दिस इज पार्टिकल नेचर, क्लासिकल लॉज ऑफ फिजिक्स। अभी हमने बताया आपको, बड़े पार्टिकल्स के लिए वेव नेचर की बात नहीं करते, व्हेन वी आर गोइंग एट द स्मॉलर लेवल, ठीक है, वेरी वेरी स्मॉलर लेवल, तो फिर क्या होगा, देयर इज नो सर्टेनिटी, वी आर ऑलवेज गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी कि भाई ये यहाँ हो सकता है, ठीक है, द टर्म। So this is called Heisenberg uncertainty principle. He said you cannot certainly say कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और स्पीड एक साथ, हम मोमेंटम एक साथ नहीं बता सकते हैं। अगर हम एक को एक्यूरेट करना चाहेंगे तो दूसरे में एरर बहुत ज्यादा आ जाएगी, दूसरे को एक्यूरेट करने जाएंगे तो पहले में एरर आ जाएगी। दैट मीन्स देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अनसर्टेनिटी। दिस इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। अब वैसे तो मैं यहीं तक कवर करना है, लेकिन कुछ डाउट में कुछ डिस्कशन बाकी है, ठीक है, तो वो हम कर लेते हैं। आप लोगों को क्या डाउट है वो बता देना, ठीक है। तो पहले तो यहाँ तक हमने कर लिया था 36 तक। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो भी डाउट है वो अभी कवर करेंगे। इफ एनीवन वांट्स टू से एनीथिंग वी कैन से। हाँ भाई, कोई डाउट है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? नहीं किया है, राइट? सॉल्व नहीं किया है। 47 48 तो नहीं, मैंने बहुत पहले दे दिया था होमवर्क आपको, ये आपको करना था, ठीक है। ये अभी आपको यहाँ तक पूरा करना है, जैसे राइट, ये यहाँ तक, और इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आगे कराएंगे, बट ठीक है, ये आपको कम से कम यहाँ तक तो करना ही है, तो मैं यहाँ तक डिस्कस करा दे रहा हूँ 47 48 तक। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है इन्होंने कि emission spectra are observed by consequence of transition of electron from higher energy state to ground state in lithium 2+ ion, है ना, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी जा रहा है लिथियम 2+. 6 डिफरेंट टाइप ऑफ फोटॉन्स आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग द इमिशन स्पेक्ट्रम. 6 का मतलब क्या हुआ, 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 6. तो डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आ गई, 3. n2 - 1 इज 3. n2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4. इसका मतलब है 4 से 1 में जा रहा है. देन व्हाट इज द एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम आयन, n = 4 कौन सी एक्साइटेड स्टेट है, थर्ड, ठीक है. 48, if λ1 λ2 is the wavelength of photon corresponding first second Lyman series,
एंड फर्स्ट बार्मर सीरीज। देख लो भाई, लाइमन सीरीज का मतलब है 2 से 1 3 से 1। दिस इज लैम्डा 1 दे रखा है, ये लैम्डा 2 दे रखा है, ठीक है। एंड लैम्डा 3 इज फर्स्ट, लेट्स से बार्मर सीरीज के लिए बार्मर का मतलब क्या होगा 3 से 2, दिस इज लैम्डा 3 इज गिवन 3 2 1, राइट। ये एन लिखा हुआ है, ये दे रखा है इन्होंने। अब ये कह रहे हैं इनमें रिलेशन क्या होगा। सो सी दिस इज एनर्जी डायग्राम, तो ये जो रिलेशन है वो एनर्जी डायग्राम के हिसाब से बनेगा। क्या बनेगा, E2 इज नथिंग बट E1 प्लस E3। तो डाल दो HC by lambda 2 is nothing but HC by lambda 1 plus HC by lambda 3, बस you got the answer। 1 upon lambda 2 is nothing but 1 upon lambda 1 plus 1 upon lambda 2। सॉल्व कर लो, you will get the answer। ठीक है भाई। 47। क्वेश्चन नंबर 40, इसमें लिखा हुआ है इफ इलेक्ट्रॉन मेक ए ट्रांजिशन फ्रॉम n+1 स्टेट टू nth स्टेट, ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन इज रिलेटेड अकॉर्डिंगली। अब देख लो, आपको पता है 1 अपॉन लैम्डा इज नथिंग बट RZ स्क्वायर 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square। You know this formula, right? If I am going to multiply it by c, मैं c से multiply कर दूं तो c by lambda क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। फोटोन के लिए फोटोन का ही फॉर्मूला है ना, फोटोन की वेवलेंथ का फॉर्मूला है, राइट। सो दैट इज फ्रीक्वेंसी, दैट इज RC/z स्क्वायर 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square। अब यहाँ पे n2 क्या दे रखा है, n+1, और n1 क्या दे रखा है, n, ठीक है। तो न्यू इक्वल्स टू RC/z स्क्वायर 1 upon n square minus 1 upon n+1 का होल स्क्वायर। टेक द एलसीएम, तो ये जाएगा n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर डिवाइड बाई n+1 का होल स्क्वायर n स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। n+1 का होल स्क्वायर इज नथिंग बट n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n माइनस n स्क्वायर। तो ये कट जाएगा n स्क्वायर, क्या बचेगा 2n प्लस 1। सो वी विल राइट 2n प्लस 1 डिवाइड बाई n+1 का होल स्क्वायर n स्क्वायर एंड फिर बाकी सब ये RC/z स्क्वायर, ये बचेगा इक्वल्स टू न्यू। अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन ले लो, क्योंकि उन्होंने लिखा है n इज ग्रेटर मच ग्रेटर देन 1, देन कैन वी राइट 2n प्लस 1 इज नथिंग बट 2n, कैन वी राइट n प्लस 1 इज नथिंग बट n, तो ये लिख लेंगे। अब ये दिस इज अप्रोक्सीमेशन, तो ये 2n प्लस 1 हो जाएगा 2n और ये n प्लस 1 हो जाएगा n, तो ये हो जाएगा n की पावर 4, तो यहाँ से कट गया, n की पावर 3 आ गया, तो 2n की पावर 3 है ना, ये RC/z स्क्वायर ये हो जाएगा। समझ में आया आकाश क्या किया, पहले इससे रिलेट किया 1 बाय लैम्डा वाले फॉर्मूले को न्यू से, फिर यहाँ पे n1 और n2 की वैल्यू लिखी, देन वी हैव सॉल्व्ड इट एंड देन वी हैव यूज्ड अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 भी वही है जैसे हमने आपको अभी 48 बताया था। दे सेड कि इलेक्ट्रॉन emits a photon of wavelength L, lambda returns to ground state, the principal quantum number का मतलब है ऑर्बिट of excited state is given by, कहाँ पे पहुंच रहा है एक्साइटेड टू ग्राउंड स्टेट। n1 आपको पता है 1, n2 नहीं पता है कितनी है और आपको लैम्डा पता है, so you just write 1 by lambda r, हाइड्रोजन एटम है तो z स्क्वायर की वैल्यू 1, 1 upon 1 minus 1 upon n square, let's say। Now you have to just calculate what is n square। तो बस इसको सॉल्व कर लो, राइट। ये इधर चला जाएगा, 1 by lambda r is nothing but 1 minus 1 upon n square, फिर इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, 1 upon n square is nothing but 1 minus 1 upon lambda r, then n is nothing but एलसीएम ले लो, ये lambda r minus 1 डिवाइड बाई lambda r, n is nothing but इसको उल्टा कर लेंगे तो lambda r डिवाइड बाई lambda r minus 1 का रूट, ये आ गया फॉर्मूला। समझ में आया क्या किया, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। आई थिंक काफी लोगों ने किए नहीं है बट ठीक है, ये यहाँ तक आपको डन है, 48 तक 49 तक ये यहाँ तक आपको कर लेना है, फिर डाउट होगा तो आप पूछ लेना, ये यहाँ तक होना है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और
ब्रॉगली वेवलेंथ के भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाले अभी क्वेश्चन नहीं हुए हैं, ठीक है, तो ये अभी छोड़ देंगे ऐसे वाले क्वेश्चंस। ये कर सकते हो, वेवलेंथ ऑफ मूविंग बिरार फास्ट लोकल, so this is they have given mass, speed दे रखी है, can you calculate lambda? Lambda is h by mv, yes you can calculate. So Srushti, sorry, Srushti, we have to write in angstrom. They will say कि किसमें लिखना है। जनरली एटॉमिक स्ट्रक्चर से इसीलिए क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आते नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा वो है, अप्रोक्सीमेशन लेके ही आंसर आएगा। फिर तो एग्जैक्ट आंसर के लिए वो क्या करेंगे ना, दे लिख के रखते हैं। अगर उन्हें चाहिए तो वो क्या करेंगे, आपको बोल देंगे कि h की वैल्यू बस आप 6 × 10⁻34 लो, ऐसा तो वो मेंशन रहती है। जब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं ना, तो दे मेंशन की कौन सी वाली वैल्यू लेनी है। TWT के लिए फुल एटॉमिक स्ट्रक्चर या हाफ, आई थिंक देखो हम लोग करा लेंगे फुल लगभग, बट वही है कि जो सबसे लेटेस्ट वाला पार्ट होता है वो थोड़ा कम आता है। तो यहीं तक आप समझो कि यहीं तक वाला जो पार्ट है हाइजेनबर्ग तक, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल व्हिच वी आर गोइंग टू कवर नेक्स्ट क्लास, वहां तक काफी आएगा। उसके बाद आता है श्रोडिंगर, और उसके बाद आता है आपका क्वांटम नंबर्स, ऑल दोस थिंग। तो वो थोड़ी देर वो उसमें हो सकता है उसका पार्ट बहुत कम आए, ठीक है, ओके। तो अब आपको स्टार्ट कर देना है सॉल्व करना, राइट। चलो, वी आर फिनिशिंग द क्लास नाउ। एनी प्रॉब्लम? ओके देन दैट्स इट। फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव, ओके, फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव। कौन सा क्वेश्चन बेटा? इलेवेंथ, ओके 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 ओके। क्या दिक्कत आ रही है 11th में? कैलकुलेट द एनर्जी इमिटेड व्हेन फूड, ये अच्छा है, ये प्लस पावर होगी, हाँ सही, करेक्ट। यहाँ पे क्या होगा, 10⁻23 प्लस पावर होगी, ऑब्वियसली डेसिमल में थोड़ी ना आइटम्स होंगे, सो दैट इज करेक्ट, यस। यस, यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर कि जो मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, वो करने के बाद के अलावा आप आराम से खुद से यूज कर सकते हैं। ये बुकलेट बहुत बड़ी है, राइट, इसमें पता नहीं कितने तरह के क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आगे मिक्स्ड हैं, so that's why I am not giving the, let's say, homework right now in such a way, but what you can do is you can start solving by yourself, है ना। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है, the wavelength of certain transition in hydrogen spectrum is this, identify the transition, so you can solve this type of question, Bohr model ये तो बीच बीच में से है, you can always start solving foundation builder, और उसके बाद वाले जो है ना उसमें मिक्स है, तो मिक्स आप अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते, ठीक है भाई। Okay, then that's it. Bye bye. For the extra practice of these questions, what should I do? कुछ नहीं, सॉल्व करो और क्या। मान लो आज आपको प्रैक्टिस करनी है, सो लेट्स टेक ये जो है ना आईआईटी वाले के क्वेश्चन है, एक्सपर्टाइज ट्रेनर के बाद, है ना, विंडोज टू जेईई मेन सॉल्व करना चालू करो। जो आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा उसको छोड़ दो, कीप सॉल्विंग। फोर्थ क्वेश्चन आयनाइजेशन पोटेंशियल आपने पढ़ा हुआ है, सॉल्व इट, है ना। ये देखो, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया, द मास ऑफ प्रोटॉन इज गिवन accelerated by potential difference of 1 kilovolt। 1 kilovolt का मतलब क्या हुआ, 1000 volt। The kinetic energy of proton will be,
काइनेटिक एनर्जी पूछिए कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज Q into V, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई है। इसमें मास नहीं आएगा, है ना, ये मास कंफ्यूज करने के लिए है ना। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट Q into V। तो ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, यू जस्ट बाय सॉल्व बाय योरसेल्फ। ठीक है भाई, ओके दैट्स इट।